السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار اور میں ہوں نصحت نور۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پتوکی میں سرائے مغل کے علاقے میں کچن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ لگنے سے 2 معذور بچیاں جھلس گئی ہیں۔ جاں بحق بچی کی شناخت 7 سالہ عائشہ جبکہ جھلس کر شدید زخمی ہونے والی بچی 3 سالہ سونیا شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تاہم آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ پتوکی کے علاقے سرائے مغل کے میں کچن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ لگنے سے 2 معذور بچیاں جھلس گئی ہیں۔ جاں بحق بچی کی شناخت 7 سالہ عائشہ جبکہ جھلس کر شدید زخمی ہونے والی بچی 3 سالہ سونیا شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پتوکی کا یہ علاقہ ہے سرائے مغل، جہاں پر کچن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ لگنے سے 2 معذور بچیاں جھلس گئی ہیں۔ جاں بحق بچی کی شناخت 7 سالہ عائشہ جبکہ جھلس کر شدید زخمی ہونے والی بچی 3 سالہ سونیا شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تاہم آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں پتوکی سے، جہاں پر سرائے مغل میں کچن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ کہرور پکا اضلاعی پولیس کا منشیات کے خاتمے کا مشن، سٹی پولیس کی کارروائی۔ منشیات فروش گرفتار، 10 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ناکہ لگا کر کملی والا چوک سے ملزم اللہ رکھا بلوچ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم اللہ رکھا بلوچ موٹر سائیکل پر تھیلے میں چرس کے پیکٹ چھپا کر لے جا رہا تھا۔ پولیس کے قبضے سے 11 پیکٹ چرس برآمد ہوئی، جن کا وزن 10 کلو 484 گرام ہے۔ دوسری جانب ہری پور ایک گھر میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکہ ہوا، ایک بچی جاں بحق، میاں بیوی سمیت 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ہری پور کے گاؤں عالم میں سلنڈر گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بچی جاں بحق، میاں بیوی سمیت 2 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ شدید زخمی اور ناش ٹراما سینٹر میں منتقل کر دی گئی ہے۔ بعد ازاں ایبٹ آباد بھی منتقل کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب میہر میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، میہر اے سیکشن تھانے کی حدود میں قاضی عارف لنک روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے رہائشی مولوی عبدالغفور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی نعش کو ضروری کارروائی کے لیے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹھل میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر 2 بھائیوں کے درمیان تصادم، جھگڑے کے دوران کزن دم توڑ گیا۔ ٹھل میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر 2 بھائیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کزن اینٹیں لگنے سے دم توڑ گیا۔ پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر مقتول کی لاش کو اپنے تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ علی پور کے علاقے تھانہ صدر کی حدود ہیڈ پنجتن کے مقام پر نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ نامعلوم شخص کو سر میں فائر مار کر قتل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں، علی پور کے علاقے ہیڈ پنجند کے مقام پر نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی، جس کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ مقتول کو سر میں فائر مار کر قتل کیا گیا ہے۔ مقتول کے ہاتھ اور منہ کو رسیوں سے باندھ گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ صدر موقع پر پہنچ گئی۔ مقتول کے ورثاء کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کی فورنسک ٹیمیں موقع پر روانہ، شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاش کو ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عارف والا تھانہ کبولہ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ڈاکو کی فائرنگ سے ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ اور 125 موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا ہے۔ عارف والا کبولہ پولیس کے مطابق 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے مزدہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ نہ رکنے کی صورت میں مزدے پر فائرنگ کر دی گئی۔ پولیس نے 15 کی کال پر رسپانس کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا تو ڈاکوؤں کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ناظرین، کھاریاں پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں، ڈی ایس پی سرکل کھاریاں چودھری شاہد محمود کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ گلیانہ محمد انور نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے 1250 گرام ہیروئن اور پسٹل 30 بور برآمد ہوا ہے۔ ملزم نے دوران گرفتاری پولیس پر فائرنگ اور مزاحمت کی،
जिस को पुलिस टीम ने पेशावराना महारत को बरोए कार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब शिकारपुर थाना डक्कन की हदूद में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। शिकारपुर थाना डक्कन की हदूद दड़ी जाखड़ी में लिंक रोड पर मोटरसाइकिल डकैती की कोशिश मुज़ाहमत पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। नौजवान की नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी सरवर शहीद पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जी हां, बिल्कुल। चौक सरवर शहीद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से एक अदद राइफल, बमा, एमुनेशन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। SDPO असर सांगी का कहना था कि लोगों की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मियां वाली पुलिस की कार्रवाई, मुसाफिर बसों की तेज रफ्तारी का मामला। मुल्जिमान को वीडियो के जरिए शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर DPO मियां वाली अख्तर फारूक ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुल्जिमान ने शाहराह-ए-आम पर मासूम इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसाफिर बस को इंतहाई तेज रफ्तारी से रेस लगाई हुई थी। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद आजम और मोहम्मद तौफीक के नाम से हुई है। दोनों ड्राइवर्स के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्जिमान के ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। उधर सोहावा में डकैती की अनोखी वारदात, डकैत असलहे के जोर पर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, सोहावा के नवाही गांव ढोक अम पे नामालूम डाकू नान शॉप की दुकान के ताले तोड़कर गले से पैसे निकाल कर फरार हो गए हैं। थाना जादाली पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार मुल्जिमान की CCTV फुटेज TV टुडे को मौसूल हो गई है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब कोट शाहू थाने की हदूद से डाकुओं के हाथों 1 माह कबल अगवा होने वाला बाप और बेटे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। करमपुर में मगवी और उसके बेटे को पुलिस ताहाल बाजियाब ना करवा सकी। डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले बाप और बेटे की वीडियो वायरल हो गई है। डाकुओं ने मगवियों की बाजियाबी के लिए 30 लाख रुपए तावान तलब किया है। बिजली चोरों और नादहिंदेगान के खिलाफ हेस्को सब डिवीजन कोटरी की कार्रवाई, रेंजर्स के ताउन से 10 अफराद पुलिस तहवील में 30 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई के अहकामात की रोशनी में कोटरी सब डिवीजन हेस्को इंतजामिया ने नाहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन बाद दस्तूर जारी है और AC सर्कल लार गुलजार अहमद दस्ती XCN कोटरी मुनीर अहमद पनहोर की खसूसी हिदायत पर SDO कोटरी सब डिवीजन गुलबहार ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए और नादहिंदगान से फौरी तौर पर बिल की अदायगी करवाई गई। तो नाज़रीन, आपको बताएं, पंजाब की तरह डेरा गाजी खान में भी चीफ ऑफिसर जिला कौंसल जवाद उल हसन गोंदल की ज़ेर सदारत तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद अली फूल बलोच से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं शाह सदर दीन के इलाका पुल छिखानी में, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के अहकामात के मुताबिक चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल मोहतरम जनाब जवाद उल हसन गोंदल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ शदीद और भरपूर ऑपरेशन कर रहे हैं। मज़ीद हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या तफसील है। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पर पूरे ज़िला डेरा गाजी खान में तजावुज़ात का ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिले में कमिश्नर डेरा गाजी खान जनाब शफाक अहमद चौधरी साहब, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद साहब, DPO डेरा गाजी खान, ये सारे लोग एक पेज पे हैं और इस ऑपरेशन की भरपूर मामलत कर रहे हैं। आज ऑपरेशन के सिलसिले में आज पुल चहानी पे हमारा दूसरा रोज़ है। कल पुल चहानी पे हमने ऑपरेशन का आगाज़ किया था। यहाँ पर जितनी दुकानें बनी हुई हैं नालाजात इस ड्रेन के ऊपर, जो कि ड्रेन का पानी रोकती थी, वो तमाम की तमाम इलीगल दुकानें हमने जो हैं वो रिमूव कर दी हैं। जो बाकी बची थी उनके खिलाफ आज ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह आज शाम तक इसको रिमूव कर देंगे। इसके अलावा ज़िला कौंसल डेरा गाजी खान की हदूद में जो हमारे तमाम टाउन्स हैं, जिसमें माना हमदानी है, जिसमें शाह सदर दीन है, दरी डोले वाली है, काला है, काला कलोनी है, शादन लुंड है,
اور نواز شہری ان تمام علاقوں میں آپریشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جب تک تجاوزات کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، دکاندار پیچھے نہیں چلے جاتے، شرز نہیں اتار لیتے، اپنے تھلے نیچے نہیں کر لیتے، یہ آپریشن جاری و ساری رہے گا۔ اچھا سر، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن یہاں سے سیدھا چوک چوراٹا تک جائے گا کہ یا صرف پل چھکانی کی حدود تک ہی محدود رہے گا، یہ بتائیے گا۔ جی بالکل، یہاں سے جو آپریشن شروع ہے اور یہ چوک چوراٹا تک جائے گا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ چیف آفیسر ضلع کونسل جواد الحسن گوندل صاحب موجود تھے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ آپریشن یہاں سے لے کر، یہ پل چھکانی ہے شاہ صدر الدین کا علاقہ، یہاں سے لے کر سیدھا چوک چوراٹا ڈیرہ غازی خان کے پاس تک جاری رہے گا۔ جی اسی کے ساتھ ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے احمد علی پھول بلوچ ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے سرگودا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت محسود احمد کی کوٹ مومن کے علاقے مٹیالہ میں کارروائی کی ہے، جعلی اور 2 نمبر کھاد سپلائی کرنے والا ڈیلر دھر لیا گیا۔ جی ہاں بالکل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت مسعود احمد نے اسسٹنٹ فیڈ احتشام الحق کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے آبی ٹریڈرز سے جعلی اور 2 نمبر کھاد کے سیمپل حاصل کر لیے۔ گودام میں موجود کھاد ڈی اے پی کا سیمپل اور مختلف کمپنیوں کی نائٹرو فاسٹ کے نمونے جات حاصل کر کے تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ لائسنس ہولڈر کاشف اور اس کا بھائی فیصل عرصہ دراز سے علاقہ مکینوں کو جعلی کھاد سپلائی کر رہا تھا۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتائیں، پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیموں کی اچار کے نام پر شہریوں کو زہر کھلانے والوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں، سینکڑوں کلو موزر صحت اچار اور مربع جات تلف کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ زبیر احمد اعجاز کی ٹیمز کے ہمراہ بورے والا میں 2 اچار یونٹس پر چھاپہ مار کر 1900 کلو پھپوندی لگا اچار اور مربع جات 120 کلو کھلا رنگ طلب کر دیا گیا۔ پروڈکشن یونٹس کو 1,75,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ اچار اور مربع کے نام پر شہریوں کو زہر سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ چیچا وطنی غیر معیاری خوراک کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر آپریشن زبیر احمد اعجاز کی سربراہی میں چیچا وطنی میں معروف ریسٹورنٹس اور بیکری کی انسپیکشن کی گئی۔ چیچا وطنی ناقص خوراک کی تیاری اور خرید و فروخت کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ زبیر احمد اعجاز کی ٹیمز کے ہمراہ چیچا وطنی میں مین ملتان بائی پاس اور زاہد اقبال چوک پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کھانوں میں ریزڈ آئل اور چائنا نمک کا استعمال کرنے پر 2 معروف ریسٹورنٹس کو 1 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ فریزرز میں زائد المیعاد گوشت اور ناقابل استعمال اجزاء کی موجودگی پر ریسٹورنٹس کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ بیکری مصنوعات کی تیاری میں ناقص اجزاء کے استعمال پر سویٹس اینڈ بیکرز کو 50,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتائیں، سیالکوٹ میں ٹریفک پولیس سمیت پنجاب بھر میں پیٹرولنگ پولیس بھی متحرک ہو کر کام کرنے لگی ہے۔ پیٹرولنگ پولیس کمرانہ والا کے انچارج سب انسپیکٹر نے عوام کی سیفٹی کے لیے مفت ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حفصہ ریاض سے۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن کے مطابق پنجاب بھر میں ٹریفک پولیس کی طرح پیٹرولنگ پولیس بھی کام کرنے میں متحرک ہو گئی ہے۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس احسان ظفر سندھو صاحب، جنہوں نے عوام کے تحفظ کے لیے مفت ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ادھر ہیلمٹ تقسیم کر رہے ہیں، یہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ جیسا کہ ہمیں آئی جی صاحب کی طرف سے بھی ہدایت ہے، ہمارے ڈی صاحب کی، ایس ایس پی صاحب نے بھی اس مسئلے میں ہمیں ہدایت کی ہے، اور اب ہم نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، کچھ لوگ غریب ایسے ہیں جو ہیلمٹ نہیں خرید سکتے، ہم نے ان کو ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے میرے ساتھ ڈی ایس پی احسان ظفر سندھو صاحب، جن کا کہنا تھا کہ عوام کے تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم ان جرائم پیشہ افراد کو ختم نہ کر دیں، اور جب میں نے اس لیے یہ ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں جو غریب عوام ہیلمٹ خرید نہ سکے۔ جی ٹھیک ہے، ہماری نمائندہ حفصہ ریاض تفصیلات فراہم کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ جی ہاں بالکل، تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں، بہاولپور میں چیئرپرسن وزیر اعلیٰ انسپیکشن کے ڈپٹی کمشنر آفس کے سبزہ میں کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے گئے۔ کھلی کچہری میں سائلین نے اپنے انفرادی اور اجتماعی اور محکمہ پولیس، ریونیو اور دیگر محکمہ جات کے متعلق مسائل و شکایات پیش کیے ہیں۔ چیئرپرسن
पर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सत्तार इम्तियाज़ मिलिट्री रिटायर्ड ने साइलिन के 200 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल की हैं और मौके पर मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के वीएन इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने कलरी इलाका थाना मोहम्मद वाला में खुली कचहरी लगाई, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद अली यज़दान बुखारी से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के वीएन इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कलरी इलाका थाना मोहम्मद वाला में खुली कचहरी लगाई है, जिसमें अहल इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है और अपने मसाइल से आगाह किया है। DPO चनियोट ने मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर तफ्तीशी अफसरान को अहकाम जारी कर दिए हैं। मज़ीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद, उनसे जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। जी सर। जी, आज हमने इलाका थाना मोहम्मद वाला में खुली कचहरी लगाई है कलरी के इलाका में, जिसमें शहरियों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर शिरकत भी की और अपने मसाइल भी बताए। और मैंने SHO को एक हफ़्ते का टाइम दिया है कि चोरी की जो शिकायत हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और इस हवाले से ठीकरी पैरा और जो गश्त है उसको यकीनी बनाए और मौसर गश्त हो ताकि वारदात और जराइम में कमी आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने DPO साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी है, चनियोट पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशिशां है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चीचावतनी में डिप्टी कमिश्नर ने जिला काउंसिल साहिवाल के ज़रिए इत्तिमाम मुकम्मल किए गए तरक्याती मनसूबों का तफसीली दौरा किया है। जी हाँ बिल्कुल, चीचावतनी में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल का तरक्याती मनसूबों का दौरा किया, जिनके तहत 50-12L से 103-12L, 182-9L से 193-9L साहिवाल तक सड़कों की खसूसी मरम्मत के मंसूबे शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने सड़कों का मुआयना करते हुए तामीराती मेयार और मंसूबे की तकमील का जायज़ा लिया है। उन्होंने ज़िला कौंसिल के अफसरान से ब्रीफिंग ली और हदायत की है कि अवामी बहबूद के ऐसे मंसूबों में मेयार और शफाकियत को यकीनी बनाया जाए। कला सईदा में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का हंगामी दौरा, अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग ली और अपडेट्स के अहकाम जारी किए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलर सैयदा का हंगामी दौरा किया है। इस मौका पर MPA राजा सगीर अहमद के हमरा मौजूद थे और दौरा हस्पताल किया है। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग ली है और अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए हैं। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सेहत ने कलर सैयदा के मुस्लिम लीगी कारकुनान के मुतालबे पर ट्रॉमा सेंटर के लिए ब्लॉक के क़याम का भी मुतालिबा किया है और माली बजट में ADP में शामिल करने का एलामिया जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का रात गए DHQ अस्पताल का अचानक दौरा, DC ने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी समेत इलाज मुआलजे की फ्राहमी का जायजा लिया है। जी हाँ बिल्कुल, ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर ने अदवायात के स्टॉक, सफाई समेत दीगर अमूर का भी जायजा लिया है और DC ने एमरजेंसी वार्ड में मरीजों की अयादत की है। अदवायात सहूलियात की फरहमी बारे दरियाफ्त किया गया है। उन्होंने मरीजों और इनके लवाहिकीन का तिब्बी सहूलियात की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब हरीपुर में IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का तरवेला गाजी टनल का दौरा, चाइनीज और सिक्योरिटी अफसरान से मुलाकात की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने मुतल्लिका आला पुलिस हुकाम को हिदायत की हैं कि तरक्याती मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ गैर मुल्कियों की नकलो हरकत के दौरान सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। तो नाज़रीन, खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इंतज़ामिया रमज़ान मुबारक में आवाम को अशिया खुरनोश मयारी और सस्ते दामों फ्राहम करने के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में मॉडल रमज़ान बाजार कायम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी गुलाम मोहिउद्दीन। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माह सियाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जिले इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। रमजान मुबारक में शहरियों को अशिया खुर्दनोश की होल से रेट पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए स्पोर्ट स्टेडियम में मॉडल रमजान बाजार कायम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं।
डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिला खानेवाल में एक मॉडल रमज़ान बाजार कैंप किया जाएगा, जबकि दीगर तहसीलों में चीनी के होलसेल पॉइंट्स कैंप किए जाएंगे। लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई इशू नज़र आता है तो काइंडली इसको हमें पॉइंट आउट करें ताकि हम लोग जाके उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रमज़ान बाज़ार का इनेकाद भी कर रहे हैं स्टेडियम ग्राउंड के अंदर, जहां पर होलसेल रेट पे चीज़ें अवेलेबल होंगी और शुगर जो है 130 पर केजी के हिसाब से अवेलेबल होगी। जिला भर में आटा, घी, चीनी, चावल, गोश्त और सब्जियों समेत अशिया खुर्द-ओ-नोश का वाफर स्टॉक मौजूद है, जबकि माह सियाम में एक बार चीनी के होलसेल पॉइंट पर हर शहरी को 5 किलो चीनी 130 रुपए के हिसाब से दस्तयाब होगी। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अब आपको बताएं, साहिवाल के पसमानदा इलाके से रहने वाले 17 साला मुसव्विर अब्बास ने साउथ एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुसव्विर अब्बास की वापसी पर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। मुसव्विर अब्बास को फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। गोल्ड मेडल हासिल करने पर इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर मुजफ्फर अब्बास से मोहब्बत का इजहार किया। इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन एथलीट चैंपियनशिप में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, भारत और भूटान शामिल थे। बुनियादी सहूलियात से महरूम 17 साला मुसव्विर अब्बास ने 8 किलोमीटर दौड़ के दौरान तमाम प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया और चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नाज़रीन, हासिलपुर का रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक बंद होने के बाद जराइम पेशा नासिर की इमाज का बन गया है। इंतजामिया की जानिब से देखभाल न होने से रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। मजीद तफसील भी जानते हैं राव मोहम्मद फैसल से। जी राव मोहम्मद फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासलपुर के रेलवे स्टेशन पर, जो कभी तो हासलपुर की रौनक हुआ करता था, लेकिन रेलवे ट्रैक बंद होने के बाद यहाँ पर जो हू का आलम है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन के साथ साथ और रेलवे स्टेशन पर नशइयों और जो चोर डकैत हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा है, यहाँ पर अपने बसेरे कर रखे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हासलपुर के रेलवे स्टेशन के साथ साथ खाना बदोशों की एक बस्ती आबाद है, जो कि जहाँ पर जराइम पेशा अफराद ने अपने डेरे डाल रखे हैं। यहाँ पर मंशियात जो फ़रोख्त होती हैं और शरेआम जुआ होता है, लेकिन इस तरफ इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। इस हवाले से जब शहरियों से जाना गया तो उनका यही कहना था कि हमने 12 बार इंतज़ामिया को इस बारे आगाह किया और उनकी तवज्जो इस तरफ करवाई, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। हमारा तो यहाँ पर से दिन में भी गुजरना मुहाल है। हमारा आला हुकाम से DPO बहावलपुर, RPO बहावलपुर, IG पंजाब से मुतालबा है कि रेलवे स्टेशन के साथ जो खैमा बदोश बस्ती आबाद हुई है इसकी चेकिंग की जाए, यहाँ पर से जुराइम पेशा अफराद को अरेस्ट किया जाए ताकि हासलपुर के शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े तो आपको बताएं, रोहड़ी में जुगियों के 8 घरों को आग लगने का वाकया, मुतासरीन ने हुकूमत से रास्ते समेत मीठा पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी से। जी गुलाम मुस्तफ़ा, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हैं रोशनाबाद के करीब गोठ प्यारो जोगी के नज़दीक नौ गोठ जोगी में। यहाँ पे दिसंबर के महीने में आग लगी थी। 8 घरों को आग ने अपने लपेट में लेकर खाकस्तर बना दिया था। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। नाम है सुधीर जोगी फ़कीर है, हम रहने वाले हैं 9 गोठ प्यारा जोगी के लग 9 गोठ दुरमोमन। हमारा 8 घरों को आग लग गई थी, लेकिन बरखा की मेहरबानी हमारे को रहने के लिए झूपड़ी भी बना के दी, हमारी मदद भी की गई। हमारे को बहुत बहुत शुक्रिया उसका, जिसने अब हमारे को ऐसे आई हुई सादिया मैडम, उन्होंने असांखे बकरियूं भी ॾिनियूं, घर भी ठाहे ॾिना, राशन भी ॾिनो, मस्जिद भी ठाराए ॾिनी, नलको भी ले गयो, टंकी भी ठाराए ॾिनी, कवड़ो पाणी आहे, पाणी जी भी ॾुखाई आहे, रस्ते जी भी ॾुखाई आहे। अल्लाह उनखे ख़ुशि कंदो। अल्लाह हाणे रस्ते जे भी ॾुखाई आहे ऐं मिठे पाणी जी भी हा वॾो। ॿियो असां फ़कीर मुंहिंजो नालो आहे, पाण जोगी ऐं बाबा। हे असांजे घरनि खे 2 महीना खनि अॻ में वसो लॻी हुई, बाहि लॻी बाबा। उनमें घड़ा सड़ी विया हुआ
लखे एहसान। को यहाँ पर देखा है कोई पानी जहरीला है, उन्होंने वायदा किया कि पानी आपको मीठा देंगे, और इन्होंने बरखा एनजीओ को अपील की है कि बराए मेहरबानी सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल जो काम है वो एक रास्ते का है और रोड का है, और दूसरा पानी का है। पानी यहाँ पे जहरीला है, हम गुजारा नहीं कर सकते जी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरियों के लिए इलाज मौलजा में मुश्किल हो गया है, तो दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर मालिकान भी महंगाई के बायस ग्राहकों की कमी का रोना रोते दिखाई देते हैं। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे का अहवाल देखें उस शरीफ से कामरान मलिक की इस रिपोर्ट में। भर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा कराना मुश्किल हो गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से जहां शहरी परेशान है, तो दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर मालिकान भी गाहकों की कमी का रोना रोते दिखाई देते हैं। 1200-1400 की रेंज में हम उन्हें सेल करते थे, वो इस टाइम 2600-2700 की रेंज में हो गए हैं। और इंसुलिन जो है कुछ अर्सा पहले हम 800-900 की सेल कर रहे थे, वो भी तकरीबन 1500-1600 की रेंज में हो गई है। और जो 1500-1600 की होती थी वो तकरीबन 3-3 हज़ार की रेंज में हो गई है। इसी तरह टोटल मेडिसिन के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। कस्टमर बहुत परेशान होता है, जो पहले हफ्ते 10 दिन की मेडिसिन ले लेता था वो सिर्फ 1 दिन की 2 दिन की मेडिसिन लेकर गुजारा कर रहा है। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है, इंसुलिन समेत इंसानी ज़िंदगियां बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ने से जो गायक 10 दिन की दवाई लेते थे वो 1 दिन की दवाई भी बड़ी मुश्किल से ख़रीद रहे हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया ताकि आम आदमी भी दवाई खरीद सके और उनका रोज़गार भी बने रहे। कैमरामैन टीम के हमरा कामरान मलिक, टीवी टुडे, उच शरीफ। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जंग में रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई माफिया ने सर उठा लिया है। नाजायज़ मुनाफाखोर गरीब तबके को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं। खुद साख्ता महंगाई करके मजदूर तबके की 2 वक्त की रोटी का निवाला तक छीन लिया गया है। चीनी, गोश्त, चिकन, अंडे और फलों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से देखिए महमूद अब्बास की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पहले ही महंगाई की चक्की में पिसने वाली गरीब आवाम के लिए रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया खरीदना मज़ीद दुश्वार हो गया है। तो आप देखें कि मैं श्याम की आमद है, तमाम चीज़ें आसमान से बातें करने लग गई हैं। आप फ्रूट को देख लें, सब्ज़ी मंडी में चले जाएँ, वहाँ फ्रूट महंगे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हुकूमत दावे तो करती है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन दावों में तो होता है लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता। जबकि चीनी, घी, दालें, सब्जियां और फल महंगे हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सब्जी मंडी गया हूँ, वहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी का रेट पूछा तो वो 400 रुपये है। तो जो कहने में सुनने में आ रहा है कि रमज़ान के बाद वो 100 रुपये हो जाएगा, तो रमज़ान में ही क्यों महंगा है? बीबी मरियम माशाल्लाह आप काम तो सफाई सुथराई के हिसाब से बहुत कर रही हैं, तो काइंडली आप निगाह जो है महंगाई के ऊपर लाजमी डालें। जो यहाँ पर इस वक्त पोजीशन है कि कोई भी जो है ना आटा और पेट्रोल और ये वो कोई भी लेने की जो है हैसियत नहीं रखता। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए आम आदमी को रिलीफ दें। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, झंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, शिकारपुर में अगवा होने वाले 9 मजदूर ताहाल बाजियाब ना हो सके हैं। वर्षा ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए शदीद एहतजाज किया। शिकारपुर के नाम पर कोट थाने की हदूद से 9 मजदूरों को बाजियाब कराने में पुलिस ताहाल नाकाम रही है, जिस पर मखबियों के अहले खाना और इलाका मकीनों ने कुरान मजीद उठाकर एहतजाज किया और हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। वर्षा ने हुकूमत से अपील की है कि अगर जल्द बाजियाबी ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मखबियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। दूसरी जानिब हाला के गांव हाकिम अली रोजानी में गुज़श्ता कई सालों से आरू प्लांट गैर फाल होने की वजह से गांव वालों ने पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर रहनुमाओं ने पब्लिक हेल्थ महकमे के ऑफिसर वहीद अरबाब से मुतालबा किया है कि गाँव हाकिम अली रोजानी का कई सालों से बंद पड़ा आरो प्लांट बहाल किया जाए, वरना हाला पब्लिक हेल्थ के नाअहल अफसरान के खिलाफ एहतजाजी दायरा वसी किया जाएगा।
तो नाज़रीन अब आपको बताएं बुलड़ी शाह करीम में इलाका मकीनों की जानिब से फैक्ट्रियों की जानिब से जहरीला पानी छोड़ने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फरजान अली रिंद से। हैदराबाद की फैक्ट्रियों का जहरीला पानी कारो गुंगड़ो सिम कैनाल में डालने के मंसूबे के खिलाफ बुलड़ी शाह करीम के इलाके मकीन आज तीसरे दिन भी एहतजाजी कैंप पर बैठे रहे। हज़ारों जानों को खतरा। बदिन के बाद अब टंडो मोहम्मद खान बुलड़ी शाह करीम सिजाल और ठट्टो की जरखी ज़मीनों को तबाह करने की साजिशें की जा रही है। हैदराबाद की बेरहम फैक्ट्रियों मालकान की जानिब से जहरीला पानी सिम कैनल कारो गुंगड़ो नहर में छोड़ने का नापाक मंसूबा तैयार हो गया है, जिससे न सिर्फ ज़रई ज़मीनें बंजर होंगी बल्कि हज़ारों बेगुनाह लोगों की सेहत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। जहरीले पानी के अखराज से मासूम बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों, कैंसर, जल्द के अमराज, पेट के मसाइल और दीगर वबाई अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन सिंध के हुक्मरान खामोश तमाशे बने हुए हैं। फैक्ट्री मालकान पर कोई जुर्माना, कोई तफ्तीश नहीं की। इन्होंने मज़ीद कहा, हम यहाँ मुसलसल 3 दिन तक एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं पर मुंतखब नुमाइंदों में से अभी तक कोई नहीं आया। ये पानी हमारे बच्चों के लिए जहर बन गया है। अगर फैक्ट्री के जहरीले पानी छोड़ने के इस नापाक मंसूबे को फौरी तौर पर बंद ना किया गया तो ये इलाके नाकाबिले रिहाइश हो जाएंगे। मुतासरीन का मुतालबा है कि फैक्ट्रियों का जहरीला पानी नहर में छोड़ने से हमारा पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। इस मंसूबे को फौरी बंद किया जाए। हैदराबाद की फैक्ट्रियों पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन का सख्ती से नफाज किया जाए। इनका कहना था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सिंधी अवाम को एक नई तबाही के हवाले कर। दूसरी जानिब खानपुर महर में JUI के रहनुमा इलामा नासिर महमूद सोमरो ने कहा है कि सिंध दरिया पर मुमकिना 6 नहरों की तमीरों का फैसला सिंध के किसी भी शख्स ने तस्लीम नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं खानपुर महर में JUI के रहनुमा इलामा नासिर महमूद सोमरो का कहना था कि सिंध दरिया पर नहरें बनाने के फैसले को JUI सिंध ने मुस्तरद कर दिया है। सिंध में पहले ही पानी की कमी है और ये मज़ीद होगी। इलामा नासिर महमूद सोमरो ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने फैसले वापस ले, बसूरत दीगर सिंध पंजाब के बैंक बंद किए जाएंगे। सिंध का आदमी पंजाब और पंजाब का आदमी सिंध में दाखिल नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बता टिंडोजाम में ड्रेनेज सीवरेज डिस्पोजल का कदीम देरेना मसला हल कर दिया गया है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन और दीगर ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन सैयद शफकत हुसैन, चेयरमैन रईस फरमान अली का कहना था कि UC फंड से ड्रेनेज सीवरेज नालों का लगभग 3000 फीट काम करवा दिया गया है, जो इस गाँव का कदीमी दरीना मसला था। और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन अपने हल्के में तरक्याती मनसूबों पर कामों में मुतहर्रिक हैं और उनके खुसूसी हिदायत पर हल्के में छोटे बड़े गाँव में ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम और डिस्पोजेबल के काम को तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है और जल्द ही UC में मजीद तरक्याती मनसूबों पर काम किया जाएगा। दूसरी जानिब फूलनगर में ऑल खानजादा पाकिस्तान का इज्तिमा किया गया है, जिसमें लोगों की फलाह के लिए मंसूबे पेश किए गए। जी हाँ, बिल्कुल फूलनगर आल खानजादा पाकिस्तान का इज्तिमा फूलनगर निजी हॉल में किया गया, जिसमें मुल्क भर के खानजादा बरादरी ने शिरकत की है। कुरानदाजी के जरिए 70 अफराद में इनामात तकसीम किए गए। तो नाज़रीन अब आपको बताएं गुजरांवाला जिना स्टेडियम में तारीखी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने सैकड़ों की तादाद में ब्लड बैग अतिया की हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान सागर से। जी उस्मान। जी मैं इस वक्त गुजरांवाला जना स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें सहाफ़ी बरादरी में पंजाब पुलिस के नौजवानों ने और कसी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। और जहाँ पर ये गुजरांवाला की तारीख का कहा जाए कि सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप है और इसमें कोई शक नहीं होगा। और इसमें जो थैलोसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं, लुस्फीमिया के और ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चे हैं, DSP इमरान वास चदर साहब की ये कावज से तमाम ब्लड कैंपों का जो है एहतमाम किया जा रहा है। और ये जो ब्लड कैंप है इसमें उनकी बहुत बड़ी कावश नज़र आ रही है, जो कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के एक ग्रुपों की शक्ल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम बात करेंगे DSP इमरान वास चदर साहब से भी। और आज के ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है उसमें कितने लोगों ने अभी
तक ब्लड डोनेट किया है। जी, आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में तस्लीमिया फ़ाइटर जो हैं उन्हें आमतौर पे खून की कमी का मसला होता है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए हमने कोशिश की है कि रमज़ान से पहले ही अच्छा ब्लड कैंप हो जाए और इतना ज़्यादा ब्लड अवेलेबल हो कि तस्लीमिया फ़ाइटर जो हैं उनका रमज़ान खैरियत से गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गुजरांवाला के दोस्त बाब जो हैं ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। आप देखेंगे कि उनको कोई कमी नहीं आएगी। अब सब तकरीबन 1000 से ज़्यादा ब्लड बैग्स इकट्ठे हो चुके हैं, जो तकरीबन मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ जो फाउंडेशंस हैं उनकी पूरी की रमज़ान की ज़रूरत को पूरा करेंगी। और इसमें अज़मत के और इस्लाम के काबिल हैं गुजरांवाला के लोग कि उन्होंने इस मुश्किल वक़्त में नेकियां लूट ली हैं, आसानियां पैदा करके उनके दुख समेट लिए हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और गुजरांवाला जो है वो एक उम्मीद की किरण बन गया है बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, तमाम तस्लीमिया फैक्टर्स के भी लिए भी, और उनको जितनी उनकी ज़रूरत होती है उस मुताबिक ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। जी सर, मैं देख रहा हूँ ये गुजरांवाले की तारीख का बड़ा जो इवेंट कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। यहाँ पे सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, पुलिस के नौजवान, वो भी मैं देख रहा हूँ एक ग्रुपों की शक्ल में आ रहे हैं, और इस हवाले से आप उनके लिए क्या कहना है? सोसाइटी में सारे इंसान होते हैं, वो सारे मकतबा फ़िक्र के मुख्तलिफ वाक़ ऑफ लाइफ के लोग वो सारे शामिल होते हैं, और बीमारी जब किसी को लगती है तो वो मकतबा फ़िक्र या वो डिपार्टमेंट नहीं देखती। मैं समझता हूँ कि ये मुश्तरका दुख है और मुश्तरका लोगों ने मिल के मुश्तरका कोशिश करके ही इसको मिटिगेट करना है, इसको कंट्रोल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो लोग हैं गुजरांवाला के, तमाम महकमों के, तमाम मकतबा फ़िक्र के वो इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ये उनकी जो जज्बा स्पिरिट है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। सर, आज रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना शुरू होने वाला है, इसमें काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं इन पेशेंट के लिए, इसके हवाले से कुछ कि इसमें वैसे तो रोज़े से भी ब्लड दे के अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि जो मुझे पता है उसके मुताबिक तो कुछ नहीं होता, ब्लड दिया जा सकता है और रात को ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी ज़रा मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलात को कम करने के लिए हमने कोशिश की है कि अच्छा ब्लड कैंप हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हैं। जैसे समझें कि थैलेसीमिया फाइटर्स के लिए रमज़ान का राशन इकट्ठा कर रहे हैं, और उनके लिए रमज़ान का राशन अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हो जाएगा, उनको ब्लड मिल जाएगा, उनके लिए ब्लड जो है वो प्रिजर्व कर दिया जाएगा। जी, जब तुम अपने अंदर दूसरों की तकलीफ़ें महसूस करने लगो तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात बन गए हो। कैमरामैन टीम के साथ उस्मान सागर, टीवी टुडे, गुजरांवाला। जी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब के विजन की रोशनी में अवाम की सहूलियात के लिए डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की हिदायत पर जिला ओकाड़ा की तीनों तहसीलों में रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से देखिए चौधरी हसनैन अहमद की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में अवाम की सहूलियात के लिए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जवेद की हदायत पर जिला उकाड़ा की तीनों तहसीलों में रमज़ान सहूलत बाजारों का क़याम। अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए रमज़ान सहूलत बाजारों का रुख कर लिया। उकाड़ा शहर में फुटबॉल ग्राउंड में रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। सहूलत बाज़ार लगाया गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मियारी और सस्ती चीज़ें फराहम की जा रही हैं। इस जो इक़दाम पर हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। रमज़ान सहूलत बाजार में अवामुन्नास को मार्केट रेट से कम नरखों पर आटा, चीनी, चावल समेत करियाना आइटम्स, सब्जियों, फलों, गोश्त और अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल्स लगा दिए गए। अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रमज़ान सहूलत बाजारों में लोगों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतजामात भी किए गए। रमज़ान सहूलत बाजारों में तमाम मुतलका महकमों के अहलकारों की ड्यूटियां भी लगाई जा चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये सहूलत बाज़ार रमज़ान से कबल लगाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और मार्केट के लिहाज से जितनी भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कम रेट पे मिल रही हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम जो है मरियम नवाज साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम इन सहूलत बाजारों से सस्ती अशिया की खरीदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी हसनैन अहमद, टीवी टुडे, उकाड़ा।
تو ناظرین بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دعوت اسلامی مورو کے تحت عظیم الشان تقسیم اسناد اجتماع منعقد کیا گیا جس میں مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اطہر اطاری نے شرکت کی۔ مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی اطہر اطاری نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شبان الموسم بابرکت والا مہینہ اور رمضان المبارک کی بابرکت فضیلت پر بیان کیا ہے، اور حاجی اطہر اطاری نے آخر میں مدرسۃ المدینہ سے سال 2024 تعلیم قرآن مجید مکمل کرنے والے حافظ قرآن مجید اور ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں میں تقسیم اسناد دیا ہے اور پھولوں کے ہار اور اجرک پہنا کر مبارکباد دی گئی ہے اور مسائل تقسیم کیے گئے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ٹی وی ٹوڈے خبر۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گنڈا سنگھ کے نواحی گاؤں کے نجی اسکول میں تقسیم انعامات کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ طالبات کو تعلیمی غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا۔ گنڈا سنگھ کے نواحی گاؤں مہالم خورد کے نجی اسکول میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی ہے۔ تقریب میں مختلف جماعتوں کے طلبہ اور طالبات کو تعلیمی غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کا مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی محنت کو سراہنا تھا تاکہ وہ مزید محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کریں۔ تقریب میں بچوں کی کاوشوں کو سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں کھیلتا پنجاب میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان تھی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے عدنان رسول سے۔ جی عدنان بتائیے گا۔ ضلع خانیوال سے تعلق رکھنے والی باسکٹ بال کی ٹیم نے ملتان ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیلتا پنجاب میں بھاری جو ہے اچھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس میں سلور میڈل پنجاب بھر میں حاصل کیا ہے۔ تو یہاں پر ان کے اعزاز میں ڈپٹی کمشنر خانیوال نے یہاں پر ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا۔ پریس کلب میں ان کو انعامات سے نوازا۔ تو یہاں پر ڈپٹی کمشنر اس کے تقریب کے مہمان خصوصی تو اس کے ساتھ پریس کلب کے جو صدر اور جنرل سیکرٹری بھی اس تقریب کے مہمان خصوصی سے بات کریں گے۔ باسکٹ بال کی پلیئر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے تقریب کے حوالے سے؟ تو کھیلتا پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو ہے اس حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے مزید بھی؟ جی بالکل یہ ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کو حوصلہ افزائی ملی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی۔ خانیوال کلب نے ملتان ڈویژن کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ سے پوزیشن لی ہے۔ اور یہ جو بچوں کے لیے سرمنی رکھوائی ہے، اس طرح سے بچوں کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، وہ میدان میں کھل کے سامنے آتے ہیں، اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو بہت شکریہ مریم نواز کا، اور یہاں جو جتنے بھی مہمان خصوصی جو تھے پریس کلب میں ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے یہاں پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیا۔ تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، ایسے ایونٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی شکریہ ادا کیا۔ کھیلتا پنجاب کے حوالے سے کوچ ہیں باسکٹ بال کے بات کریں گے اس حوالے سے۔ کیا کہیں گے آپ اس پروگرام کے حوالے سے جو ہوا ہے؟ جس سے پریس خانیوال نے ینگز 5 وومن باسکٹ بال کلب ملتان کی نمائندگی کرتے ہوئے پنجاب بھر میں سلور میڈل حاصل کیا، ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ چیف گیسٹ تھی، اور انہوں نے ہمارے اعزاز میں یہ تقریب کی۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور میں اس حوالے سے ایک یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہماری جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا، اس سے پورے پنجاب میں گراؤنڈ آباد ہوں گے اور ہسپتال ویران ہوں گے۔ پنجاب نے جو کھیلتا پنجاب کا ایونٹ کرایا یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ یہ ایک اس سے ہونے سے جو گراؤنڈ آباد ہوں گے اور ہسپتال ویران ہوں گے، انہوں نے شکریہ ادا کیا ڈپٹی کمشنر خانیوال اور پریس کلب کے جو صدر ہیں انہوں کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سوات کے علاقے کانجو میں نجی انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کے زیر تمام یوریشن لیجنڈ ایوارڈ 2025 کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دینے والے شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے نمائندہ افتخار احمد۔ سوات کے علاقے کانجو میں یوریشین اسکول انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام یوریشین لیجنڈ ایوارڈز 2025 کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ تقریب میں تعلیم، صحافت، قانون، طب اور سماجی خدمات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو خصوصی ایوارڈز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر یوریشین اسکول کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر سبیع الرحمان قاضی نے تعلیم کے فروغ میں اسکول کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں سوات پریس کلب
के चेयरमैन नियाज अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी शफीउल्लाह सेठ, शहाबुद्दीन शीरिनजादा, सलीमा तरा और दीगर सहाफ़ियों को भी अवार्ड्स दिए गए, जिन्होंने सहाफ़ती मैदान में शानदार खिदमत अंजाम दी है। कानूनी, तिबी और समाजी शोबों में नुमाया शख्सियत को भी अकरमुर्रहमान, माहिर नफ्सियात मारिया सुबहान, समाजी खिदमत के शोबे में कांजू इस्लाही कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद इनामुर्रहमान, समाजी कारकुन अकबर अली शाह, खुर्शीद अली तारान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को भी एजाज़ात दिए गए। तकरीब में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन, तकारीर और सकाफती सरगर्मियाँ भी पेश किए गए, जिन्हें शुरुका ने बेहद सराहा। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर सबीउर्रहमान काजी ने तमाम शुरुका का शुक्रिया अदा करते हुए यूरेशियन स्कूल की तालीमी तरक्की और माशरती बेहतरी के अज़म का इआदा किया। ये शानदार तकरीब स्वात के लिए एक यादगार इवेंट साबित हुई, जहां नुमाइया शख्सियात को इनकी खिदमत के एतराफ़ में खिराज तहसीन पेश किया गया। ऐसी तकरीबात का इनेकाद मुआशरे में मस्बत तब्दीली और तरक्की के राह हमवार करता है। इफ्तिखार अहमद, टीवी टुडे, कांजू, स्वात। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे उस्ताद मोहम्मद की तकरीब हलपरदारी प्रेस क्लब हॉल में मुनक्किद हुई है, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदारज़ादा फैसल खान जमाली थे। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदारज़ादा फैसल खान जमाली ने नौमुंतखब प्रेस क्लब सदर अली हसन डोमेकी और कबीना के अहदेदारों से हल्फ लिया है। इस मौका पर तकरीब से मेहमान खास सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदारज़ादा फैसल खान जमाली ने खिताब करते हुए कहा कि कबीना के अहदेदारों को मुबारकबाद दी और कहा कि सहाफ़त मुक़द्दस पेशा है और उस्ताद मोहम्मद प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हमेशा मस्बत सहाफ़त की है और अवामी मसाइल को उजागर किया है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, बहावलपुर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए ख़वातीन में आल पंजाब फीमेल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में 5 शहरों की टीमों ने हिस्सा लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए ख़वातीन में। यहाँ पर स्पोर्ट गाला का इनकाद किया गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे, बताएगा। जी, आज ऑल पंजाब फीमेल स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी। इसमें 5 शहरों से टीम्स आई हैं, जिसमें लाहौर, गुजरात, लिया, मुल्तान और बहावलपुर की टीम्स हैं। और जो गेम्स में बच्चियां पार्टिसिपेट करेंगी वो वॉलीबॉल, नेटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस की गेम्स हैं। और आज इसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है और ये 4 दिन का 4 रोजा गाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारा इवेंट है बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि ये जो स्पोर्ट गाला है ये 4 रोजा है और इंशाल्लाह ये कामयाब रहेगा। जी, सरगोदा के निजी मैरिज हॉल में ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद किया गया है, जिसमें जिला भर से ब्यूटिशियंस और मॉडल्स ने शिरकत करके इस वक्त मेहर उस्मान फैशन शो में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मेहर उस्मान, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा का एक निजी मैरिज हॉल है। यहाँ पर एक ब्यूटिशियन की जानिब से एक फैशन शो का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर ज़िला भर से ब्यूटिशियंस जो हैं वो आई हुई हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं मेकअप के नए अंदाज जो है वो मुतारिफ कराए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मॉडल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। जी, आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट रोज़ बरोज़ होने चाहिए, क्योंकि जो आजकल की लड़कियाँ हैं उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई नई एक्टिविटीज़ आती हैं मेकअप के हवाले से, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से, हमारी ब्यूटिशियन को और इन्हेंस करती हैं। मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को सीखें और दुनिया में प्रोवाइड करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस इवेंट में ख़वातीन को मेहंदी और मेकअप के जो अंदाज़ है वो मुतारिफ कराए गए। इसके साथ साथ जो ब्यूटिशियंस हैं उन्होंने मॉडल्स को तैयार किया। यहाँ पर मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक किया, जिसको आई हुई ख़वातीन ने बहुत सराहा है। और जो मॉडल्स हैं उनका यही कहना है कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाए ताकि जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं उनको बहुत। मेहर उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आके बढ़े और आपको बताएं, मुस्तफाबाद के नवा में बास ज़मींदारों ने महकमे की मिली भगत से माइनर तोड़कर मेहनत कशों की दर्जनों एकड़ फसलें बर्बाद कर दी हैं। बार बार महकमा नहर को इत्तला देने के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हो रही। किसानों का एहतजाज वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं मियाँ शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। बासर ज़मींदारों ने महकमा नहार की मिली भगत से नवाही इलाका सरोए में माइनर तोड़कर ज़मींदारों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी गंदम और मकई की फसल बर्बाद कर दी। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग जो हैं आगे के वहीद
कुछ और लोग भी हैं, वो इसको ओवरफ्लो चलाते हैं और इसको अभी तो तोड़ा, ये देखो इसको तोड़ दिया है और ये हमारा नुकसान तकरीबन 50 लाख का तो हो गया है। ये 40-45 एकड़ तो मक्का और ये मकई और ये जो है गंदम की फसल है जिसको तबाह कर दिया है। हमें सुबह पता चला है कि ये पानी जा रहा है, टूट गया है, यहाँ से ये खाड़ा टूट गया है, तो हमने उधर हेड पे बताया, एसडीओ को फ़ोन किया, ओवरसीयर को किया, दूसरे तीसरे मिस्त्री को किया, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारा ये जो नुकसान है ये बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार महकमा हार को इतला देने के बावजूद ना तो नहर का पानी बंद किया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कई एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही पर किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोट्स लेने की अपील की है। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद के शोबा गंदम के तहत माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से नमरदस्मा होने और फूड सिक्योरिटी के हसूल के मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ज़रई माहिरीन, मुहक्किकीन और पॉलिसी साज और गंदम की पैदावार में इजाफे के गिर्द पेश मसाइल पर रोशनी डालेंगे। इसी हवाले से तफसीलात भी जान लेते हैं मुनीबा फातिमा की इस रिपोर्ट में। गंदम को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा फैसलाबाद में 2 रोज़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मिस्र, तुर्की, लीबिया, तीनस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के ज़रई माहिरीन और साइंसदान ने शिरकत की। अयूब रिसर्च फैसलाबाद के साइंसदानों की मुतारिफ करदा गंदम की नई इक़साम, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी और काश्तकारों की भरपूर मेहनत से गंदम की 31.8 मिलियन टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई। आज मैं यहाँ पर 7 ममालिक से डेलीगेशन लेके आया हूँ वीट ब्रीडर्स का पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तानी वीट ब्रीडर जो से हैं मुख्तलिफ सूबों से, वो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनका आपस में वो अपने तजर्बा जो से है उसको शेयर कर रहे हैं और हम अपने आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें आगे जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं ख़ास तौर पे गंदम के, तो इनके ऊपर सारी बहस हो रही है और इसको देखना है कि हम अपने तामन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये क्लाइमेट चेंज जो वीट के ऊपर हमारा जो है असर क्या है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि गंदम सबसे ज़्यादा खाई जाती है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आता है कि कभी पानी ज़्यादा यानी बारिश हो जाती है तभी नुकसान और कभी बारिश ना हो तभी नुकसान होता है। तो हमने ये कॉन्फ्रेंस इसी वजह से है कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ कोलैबोरेशन की, वो अपने एक्सपीरियंसेस अपनी रिसर्चेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम उनके साथ अपनी शेयर कर रहे हैं। और वैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि गंदम में हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये ना सिर्फ अपनी गंदम पैदा करे बल्कि जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं उनमें एक्सपोर्ट भी हम करें। और इंशाल्लाह पिछले साल आपके मालूम है कि पिछले साल हमारी बहुत रिकॉर्ड पैदावार गंदम हुई थी, इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी जो हमारी पैदावार होगी। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं वो अपने अपने तजर्बात जो हैं वो बताएंगे कि किस तरह उनके मिस्र के जो साइंटिस्ट हैं वो अपना बताएंगे, सीरिया के साइंटिस्ट जो अपना बनाएंगे, उज़्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान के, ये सारे लोग जो हैं ये अपनी अपनी जो वीट उनके मुल्क के अंदर गंदम हो रही है उसका तजज़िया पेश करेंगे। कि कॉन्फ्रेंस में बढ़ते हुए दर्जा हरारत, पानी की कमी, मौसमियाती गैर यकीनी सूरत हाल और गंदम की फसल को होने वाले नुकसानात के मसाइल और इनके हल के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के इनकाद से गंदम पैदा करने वाले अहम ममालिक के ज़रई साइंसदानों में मुश्तरका तहकीकी काविशों में जिद्दत की राह हमवार हो गई। वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी DG खान प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद, वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर इश्तियाक अहमद और डायरेक्टर ग्लोबल वेट प्रोग्राम समिट केवन पैक्सले समेत ज़रई माहिरीन और साइंसदान की कसीर तादाद ने शिरकत की। Yeah, look, I think I've been coming to Pakistan now for 10 years on this particular project, and the fact that we've had that 10 years of funding has allowed us to make great progress. And as I said earlier, it's by working with colleagues here who have a different perspective, I'm able to improve our work in Australia, and we do that, and I'm hoping that they also do that here in Pakistan by learning from our experience. And in fact, the team in Pakistan has come and visited us in Australia and seen what we do there firsthand as well. So these exchanges of scientists, I think, are absolutely vital to
कैमरामैन कमाल भट्ट के साथ मुनीबा फातिमा, टीवी टुडे, फैसलाबाद। रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं सादिकाबाद में बारिश बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अब्र रहमत बरसने से किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि बारिश और सर्दी की लहर में इजाफे से गंदम की पैदावार में भी इजाफा होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं धनी बख्श मेहर से। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह सादिकाबाद में भी मौसम सरमा की दूसरी बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त कहीं पर हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो बरस रही है। बारिश के होने से जो है मौसम खुशगवार हो चुका है और जाती हुई सर्दी जो है लौट आई है। शहरियों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठे हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और अगर बात की जाए सादिकाबाद में ज़राअत के हवाले से तो इस वक्त गंदम की फसल जो है पकने के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। और गंदम में जो है इस वक्त जो है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस वक्त दानों की भराई का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से हमारी ज़री माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त जो है गंदम में दाने भराई का सिलसिला जो है वो जारी है। मौसम ठंडा हो चुका है। इससे जो है वो फ़ायदा ये होगा कि जो दाने होंगे वो मोटे होंगे और उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे जो यकीनन 5 से 6 मन जो है एवरेज जो है वो फ़ी मन जो है वो बेहतर होगी। इस हवाले से हमारे किसानों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अल्लाह की तरफ से जो रहमत बरस रही है और मौसम जो खुशगवार हो चुका है तो हमारी गंदम को जो यकीनन फ़ायदा होगा और किसानों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठे हैं और वो खुश दिखाई दे रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी बारिश होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिससे शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम रसूल पनिहार से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी मौसम सरमा की पहली बारिश होने के बाद ठंड में जो है वो इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों के चेहरों पर जो है खुशी की लहर जो है वो महक उठी है। इस हवाले से ज़राअत की बात करेंगे तो ज़राए माहिरीन का कहना है कि इस बारिश की वजह से जो है गंदम की फसल को जो है इंतहाई फ़ायदा होगा, जिससे उनकी उपत में जो है वो इजाफा हो सकता है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर काश्तकारों से बात हुई, उनका यही कहना है कि बारिश जो है ये बरस रही है, ये अल्लाह की रहमत है, जिससे हमारी फसल को जो है वो फ़ायदा हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ये बारिश जो है मुल्क के दीगर इलाकों में जो है वो 2 से 4 दिन तक मज़ीद जारी रहेगी। जी तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कहाना के निजी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स गाला 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों के अलावा असातिज़ा, मेहमान ख़ुसूसी और दीगर मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की है। निजी स्पोर्ट्स गाला में डायरेक्टर स्कूल नदीम चौधरी एडवोकेट की जानिब से बच्चों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी करवाए गए हैं और नुमाया पोजीशन पर आने वाले 85 से ज़ायद बच्चों को ट्रॉफीज, मेडल और तारीफी असनाद से नवाजा गया। इस मौका पर सेंवी स्कूल इंतजामिया का मज़ीद कहना था कि हम बच्चों की तालीम के साथ साथ खसूसी तरबियत पर भी काम करते हैं। बच्चों की बेहतर कारकर्दगी पर उनको इनामात से भी नवाजा जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।